Good morning. Today I will discuss a numerical regarding change of internal energy as well as how to calculate the work done, internal energy and change of heat. Already we have studied about how to solve the numerical of the first law of the thermodynamics. Beside this here, a value is that change of entropy. So what is the change of entropy? The formula significance of the change of entropy, del S, that is to be equivalent to the value of, it is the ratio of R ln V2 upon V1 plus CD ln V2 upon V1. So generally the expression which I have tried earlier in the earlier video, how to write the expression for the change of entropy into the different thermodynamics processes. So here in this numerical, the statement in such a way: 1 kg of air initially at 7 bar pressure and 360 Kelvin temperature, expand PV के power 1.2 is equal to C. Here it is mentioned that the process is polytropically until the pressure situated to 1.4 bar. तो pressure जो है वो 7 bar से expand हो रहा है 1.2 here 7 bar up to 1.4 bar. So initial pressure is 7 bar और जो end का pressure है that is 1.4 bar. हमें determine क्या करना है? Final volume and temperature. तो फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फाइनल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जनरली आइडियल गैस इक्वेशन से द वॉल्यूम इज P1, फाइनल है तो हम P2 कर लें, P2 V2 is equal to mR P2. This is the formula for final volume temperature. आइडियल इक्वेशन से P2 V2 is equal to mR P2. अब यहाँ पे वैल्यू जो दिया है वो P2 की दिया है, V2 फाइनल वॉल्यूम निकालना है, M 1 kg दिया है, R की वैल्यू दिया है, बट T2 की वैल्यू नहीं दिया है. तो T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जनरली हम लोग जो इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स में यूज किए थे फॉर द केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एज वेल एज इन द एडियाबैटिक प्रोसेस, तो द फॉर्मूला इज T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to the power n minus 1 over n. This is the polytropic process. So for the polytropic process, we calculate T2 निकालना है. यहाँ पे T1 की वैल्यू जो दिया है that is 360 Kelvin. P2 upon P1, P2 की वैल्यू दी हुई है that is 1.4. P1 की वैल्यू दिया है 7, n की वैल्यू दिया है 1.2 minus 1 upon 1.2. n की वैल्यू जनरली हम लोग जो ये इक्वेशन लिखी गई है PV की पावर 1.2 is equal to C, यही n की वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं. अब इस इक्वेशन से हमारी वैल्यू जो आ जाएगी, द वैल्यू इज 275 Kelvin. Solving this, we get the easy value of T2 with the help of calculator. T2 is equal to 275 Kelvin. Now we have to calculate the value of V2. तो T2 की वैल्यू हमारी आ गई. अब इसी T2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे. P2 जो दिया है वो बार में दिया है. P2 की वैल्यू दिस इज 1.4 बार. तो हम क्या करेंगे जनरली? P2 1.4 into 10 to the power 5. जब भी बार है, हमने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस किया है, बार को हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. तो 1.4 into 10 to the power 5. V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? This value is to be calculated. Then M 1 हो जाएगा, R की वैल्यू 287, T2 आपने निकाला है 275. तो जो भी V2 की वैल्यू आएगी, this V2 is equal to 0.5641 meter cube per kilogram. This is the value of V2 and it will be calculated by V2 0.5641. Okay. Now B फाइनल पहला तो था फाइनल वॉल्यूम टेम्परेचर निकल गया. फाइनल टेम्परेचर जो है वो T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to the power n minus 1 upon n से निकला. और V2 कैसे निकला? P2 V2 is equal to mR P2.
नाउ यहाँ पे हमें निकालना है तीन चीज, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड चेंज ऑफ हीट। तो सबसे पहले जब हम चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है del U इक्वल टू CV dt। m की वैल्यू जो है वो हम लोग 1 ले लेंगे, तो CD की वैल्यू, इस वैल्यू को हमें डिटरमाइन करना है। तो जब भी CD की वैल्यू नहीं दिया हो और R की वैल्यू दे या गामा की वैल्यू दे, तो जनरली वी टेक द टू एक्सप्रेशन CP minus CV is equal to R and gamma is equal to CP by CV। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, CP is equal to gamma CV minus CV is equal to R, CV is equal to R upon gamma minus 1। ओके, CD की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले से, R की वैल्यू दिया है 287, गामा की वैल्यू 1.4 माइनस 1, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो CD की वैल्यू आएगी। ओके, CD की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, देन CD T2 माइनस T1, T2 की क्या वैल्यू है और T1 की क्या वैल्यू है, अभी आपको निकाला। T2 की वैल्यू आई है 275 और T1 जो है स्टार्टिंग जो टेम्परेचर है वो 360 है, 360। तो स्टार्टिंग का टेम्परेचर T1 माइनस T2 360 माइनस 275, इसको सॉल्व करेंगे तो वो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की वैल्यू। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट थर्ड, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बाद हमें जो कैलकुलेट करना है, दिस इज द वर्क डन। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए W1 से 2 P1 P1 minus P2 P2 upon n minus 1। प्रोसेस आपका पॉलीट्रॉपिक है, तो दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। P1 की वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे 7 बार इनटू, इसको बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। V1 जो है, द वैल्यू ऑफ V1 इज अगेन कैलकुलेटेड with the help of P1 V1 is equal to MR P1। यहाँ पे देखिए P1 की वैल्यू दिया है, M की वैल्यू दिया है, R की वैल्यू दिया है, T1 की वैल्यू दिया है, तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी। जो भी V1 की वैल्यू आएगी हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, माइनस V1 की वैल्यू आएगी P2 की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है, दैट इज 1.4 बार, 1.4 into 10 to the power 5 V2 की वैल्यू अभी आपने निकाला है, इसके पहले जो आई है 0.564 और n minus 1, n की वैल्यू 1.2 minus 1। So putting all these value we calculate the terms work done here in the process W12। तो जब हम इसको वैल्यूज पुट के सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 12.19 किलो जूल पर किलोग्राम कैलोरी। दिस इज द वर्क डन। नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, सो द वैल्यू इज नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हमें del U निकल गया, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, देन वर्क डन, थर्ड इज द चेंज ऑफ हीट। Change of heat, del U is equal to del U plus del W, ये फॉर्मूला होता है। ओके, del Q is equal to del U plus del W। अब del U और del W की वैल्यू को हमें पुट करना है, तो del U CVDT प्लस del W PE। del U वैसे भी हमने निकाल लिया था, तो del U की वैल्यू आई थी -6.09।
प्लस आपका वर्क डन आया हुआ था, दिस इज माइनस 12.19 माइनस 12.19, तो हम अगेंस्ट में लेंगे P2 माइनस 19, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डेल्टा 66 किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने कैलकुलेट किया है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जब हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया था, तो उस टाइम हमने ये सारी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया हुआ है। नाउ अब हम लोग चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालेंगे। चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालने के लिए डेल एस इज इक्वल टू सी वी log e T2 by T1 plus R log e V2 upon V1. So this is the entropy for change of entropy Cv log e T2 upon T1 plus R log e V2 upon V1. तो वन बाई वन हम जो वैल्यूज हैं उसको पुट करेंगे। Cv की वैल्यू हमने सॉल्व किया था, T1 की भी वैल्यू आ गई है, T2 की भी आई है, R की वैल्यू दिया है, V2 और V1 की वैल्यू हमने निकाला है, P1 V1 is equal to MR T1 से और P2 V2 is equal to MR T2 से। तो while putting all these value here, the value of del S, this value is equal to 0.1916 kilojoule per kilogram Kelvin। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी del S की वैल्यू हमारी ये आ गई, दिस इज इक्वल टू del S 0.1916। तो जब भी हम लोग एंट्रोपी का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो चेंज ऑफ एंट्रोपी जो डिफरेंट प्रोसेसेस में है उसके फॉर्मूलाज जो है हमें पता होना चाहिए। Now next, work done, not change of entropy. Change of entropy in polytropic process. The change of entropy in the polytropic process. So how to calculate the change of entropy in the polytropic process? इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं del Q की वैल्यू जो होती है that is del U plus del W। Okay, here del U is equal to CV dt plus del W PdV upon del Q की वैल्यू, चूंकि ds जो है that is del Q by T, तो यहाँ से हम del Q की वैल्यू ले सकते हैं TdS। तो del Q की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे TdS is equal to CV dt plus PdV। तो इस फॉर्मूले में TdS is equal to CV dt plus PdV। अब C से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, ds is equal to CV dt upon T plus Q by T dV। चूंकि PV is equal to RT, तो यहाँ से वैल्यू आएगी P by T is equal to R upon V। यहाँ पे हम पुट करें ds is equal to CV dt by T plus R by V dV। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग both side, integration of 1 to 2 ds is equal to integration of 1 to 2 CV dt upon T
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 r by v। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी s2 minus s1 इज इक्वल टू cv log e p2 upon p1 प्लस r log e v2 upon v1। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है वो इस तरीके से डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला हम लोग इसको याद कर सकते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो वर्क डन है, दिस वैल्यू इज s2 minus s1 is equal to cv log e p2 by t1 plus r log e p2 by v1। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वो चेंज ऑफ एंट्रोपी का फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से डायरेक्ट एज जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। ओके, okay, now in the next numerical, that is a gas initial at 1.5 bar pressure, initial में जो गैस का प्रेशर है that is 1.5 bar, the initial pressure is 1.5 bar। तो P1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 1.5 बार। ओके, P1 is equal to 1.5 बार, V1 0.15 मीटर क्यूब, वॉल्यूम जो दिया है 0.15, T1 दिया है 300 केल्विन। जो इनिशियल की कंडीशन थी वो P1, V1 और T1 इस तरीके से दिया है। नेक्स्ट जो है वो P2 की वैल्यू that is 15 bar, V2 was compressed polytropically, N की वैल्यू दिया है 1.2। So these are the terms which are given in this numerical. So here we calculate the total change of entropy into this numerical. तो जब भी हम चेंज ऑफ एंट्रोपी के ऊपर जाएंगे, हमें जो फॉर्मूला है चेंज ऑफ एंट्रोपी का वो डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे लिखा है जो प्रोसेस है आपका वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी डेल एस, अगर हम जो वैल्यूज दिया है उसके हिसाब से जाएं तो क्योंकि फॉर्मूले में हम जब ड्राइव किए थे तो डेल इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, यहाँ पे हमने लिया था t से डिवाइड कर दिया सब में, तो ds इज इक्वल टू दिस वैल्यू cv dt by t प्लस डेल w प्लस t dt। हो गया सही है? अब बना दिया सर अपना मेल कर दिए? मैं मेल नहीं किया। अच्छा, टाइप कर दिए, ठीक। अब अंकित को दे दीजिए। ठीक। ds is equal to cv dt upon t plus p dt upon v। तो इस जो भी हमने ये लिखा हुआ है चेंज ऑफ एंट्रोपी का, इसमें हम अगर इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, ओके, तो बोथ साइड इंटीग्रेट हम करेंगे p by t इज इक्वल टू pv इज इक्वल टू क्या होता है rt, तो p by t इज इक्वल टू r अपॉन v, p by t इज इक्वल टू r अपॉन v। अब p by t की वैल्यू हम r by t लिख सकते हैं, p by t की वैल्यू r by d। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये वैल्यू आएगी ds इज इक्वल टू cv log e t2 by t1 प्लस r log v2 by v1। जनरली चेंज ऑफ एंट्रोपी के केस में जब प्रोसेस आपका पॉलीट्रॉपिक है तो ये फॉर्मूला आएगा cv log e t2 by t1 प्लस r log e v2 upon v1।
इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो कहीं पे भी आप V1 की वैल्यू दिया है, V2 की वैल्यू नहीं दिया है, P1 की वैल्यू दिया है और P2 की वैल्यू दिया है। सिमिलरली T1 और T2 की हम बात करें तो T1 by T2 is equal to P2 by P1 raised to the power n minus 1 over n। यहाँ से आपका n की वैल्यू क्या दिया है न्यूमेरिकल में 1. PV की पावर 1.25 is equal to C है, तो n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 1.25। तो T2 by 300 is equal to P2 by P1 15 upon 1.5 1.25 minus 1 upon 1.25। तो यहाँ से हमारी T2 की वैल्यू निकल आएगी। T2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, T1 की वैल्यू पुट करेंगे। अब न्यूमेरिकल में जो टर्म्स दिया है वो Cp और Cv की दिया है। चूंकि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है तो यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट कर देंगे। log E V2 upon V1 एक वॉल्यूम दिया है 0.15, then corresponding this we can calculate the value of second volume। So putting all these value then we can calculate the terms how to change the entropy into this case। So the entropy numerical generally that is derived by the what is the process that is given in the numerical and which formula that will be used। Suppose that when we don't remember the what is the formula, then direct we can derive the formula and put all these value and we put the related terms which are given corresponding this, we put all these value and finally we can solve। Okay, so this is the numerical, how to solve the numerical regarding change of entropy। Okay, thank you।